Hello, friends. I'm your buddy Harishchandra. Today we are with the Mr. Prasad Vangujre. Prasad carries more than 13 years of work experience into pharma sales. So today here he is with us, and he will be taking us through with a lot many things. Okay, and we will be discussing on his entire journey. And just to mention that he has worked with the all top pharmaceutical companies. So it includes the Nicholas Piramal, it includes the Centaur Pharma, it includes the Cipla. Okay, and now he's working in the capacity of area in charge or area sales manager for the Lupin Pharma. So welcome, our Yes. super buddy. Thanks Mr. for Prasad. introducing me, Mr. Harish. So first of all, wishing you a very happy new year to all of you. We are sharing this video on the first day of this year. So wishing you a very happy new year to all of you. And this year is coming with lot of joy. Also, you fulfill your dreams in coming days also. Best of luck for all of us. From our Thank you. side. Thank you, Prasadji. Okay. So, Prasadji, so the point is, okay, I have seen your journey, okay. I was going through your LinkedIn profile, okay. So, could able to see lot many things into it, okay. Even I also referred your the curriculum vitae, okay, wherein you mentioned your all the things, okay, how you have started your journey and everything, okay. So, Prasad, just to take this discussion ahead, so first I want to start with why sales? Sales क्यों? यस सेल्स क्यों है ये क्वेश्चन में उसका आंसर आपको मिल जाएगा क्यों सेल्स है देखो लॉट्स ऑफ कंपनीज इन इंडस्ट्री देखेंगे फार्मास्यूटिकल कंपनी हो गया है आईटी कंपनीज हो गया है उसके बाद में गुड्स एंड कैपिटल हो गया है कंस्ट्रक्ट की कंपनी हो गया है मार्केट में आपको लॉट्स ऑफ इंडस्ट्री मिलेंगी बट वो कंपनी का प्रोडक्ट ही नहीं बेच सकेंगे तो उसके लिए क्या आप मायने रखेंगे इसलिए तो सेल्स पार्ट इज़ इम्पोर्टेंट और उसमें सेल्स ही क्यों लेना है क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा है सेल्स में देखेंगे आपको क्योंकि सेल्स नहीं हुआ कंपनी का वो कंपनी ग्रो नहीं करेंगे और कंपनी ग्रो नहीं करेंगी तो उसके एम्प्लॉय भी नहीं ग्रो करेंगे तो इसलिए दिस इज़ द सेल्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसमें अगर आपको करना है तो पैशनेटली आप कर सकते हैं और मैक्स टू मैक्स आप अर्न कर सकते हैं लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है लॉट्स ऑफ प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे लॉट्स ऑफ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे मतलब आपके जो ड्रीम्स है आपको किसी को जल्द से जल्द घर लेना है आपकी गाड़ी लेनी है आपको आगे जाना है आपके फ्यूचर में तो आप जल्द से जल्द कर सकते हैं सेल्स में लेकिन दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस बिकॉज विदाउट परफॉर्मेंस यू डू नॉट डू एनीथिंग Prasad, thanks. You briefly made us understood why you are into this industry, okay? But let's jump into the year 2006, 7, or maybe 8. I believe you started your journey. Yeah. Start by 2008, okay? So 2008, and today we are into the first day of 2024. So almost it is 14 years of journey, Yes. okay? So when you started your career, okay, so that time also there were a lot many things, okay. You might have joined somewhere into the HR field, you might have joined somewhere into the other fields, okay. It includes the manufacturing companies, okay, or even into any kind of other profiles, okay, wherein you can sit into the office and you would have operated. Why you choose to get into the pharma business, okay? देखो फार्मा मैंने क्यों चीज चूज किया है इसके पीछे सबसे बड़ा मतलब मैं I'm reason just trying to understand that 2008 scenario, okay, how you jumped into it. है देखो 2008 में हम जब मैंने बीएससी कंप्लीट किया मेरा जो प्रोफाइल है बीएससी केमिस्ट्री आई हैव कंप्लीटेड Okay. उसी टाइम पे कैंपस इंटर हुआ था हमारे देवगिरी कॉलेज करके है वहाँ पे तो समझ वहाँ गया। पे संभाजीनगर में छत्रपति संभाजीनगर और वहाँ पे कैंपस इंटर हुआ निकोलस पिरामल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 4th नंबर की कंपनी थी उस टाइम पे अभी नहीं वो फिलहाल क्योंकि उन्होंने सारा जो उनका बिजनेस है वो टेक ओवर किया एबॉट ने एबॉट भी बहुत बड़ा ग्रुप है तो उस टाइम पे हमने इंटरव्यू दिया और विद इन द 1 डे में हमारा वहाँ पे ऑफर लेटर निकल गया और फिर फार्मा ही क्यों चूज किया मैंने क्योंकि देखो अभी फार्मा में कैसे अपॉर्चुनिटी अभी देखो डे बाय डे नए डिसीज आ रहे हैं डे बाय डे उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी बढ़ रही है देखो एक सिंपल सी बात हो जब तक बीमारी है तब तक फार्मा इंडस्ट्री चलने वाली है ये सही बोल रहे हो बात आप पकड़ के चलिए जब Right. तक बीमारी रहेंगे तब तक फार्मासिटी और बीमारी तो खत्म होने नहीं वाली डे बाय डे नए डिसीज आने वाले हैं और इसलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी डे बाय डे बढ़ने ही वाले हैं तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और देखो इसमें पैकेजेस भी बहुत अच्छे मिलते हैं आपको मार्केटिंग में ये बात देख के चलो
क्योंकि आप प्रोडक्शन में जाएंगे वहाँ पे भी मिलेगा आपको पैकेज, लेकिन एज कम्पेयर टू प्रोडक्शन आपको मार्केटिंग में बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, अलाउंसेस मिलेंगे, इंसेंटिव्स मिलेंगे, फैसिलिटीज़ मिलेंगे अलग अलग आपको। राइट ये राइट रहेगा। मतलब मैं तब की बात कभी करूँ 2008 की, तो बात यही थी कि यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, द सच अ बिग कंपनी वाज देयर इनटू योर कैंपस, you attended the interview and you got opportunity to work with them. Yes, Okay, yes, definitely. so that way you started to get introduced with the all the things and terminology of the pharma industry. Okay, so Prasad ji, okay, so if let's take an example, any new candidate, fresher candidate, okay, or someone is working into other industry, into the other business, okay, and he wants to get into the pharma role, okay, so pharma basically sales, okay. Nowadays we are calling it to business development, okay. Someone calls it as the sales of state profile, okay, but they are doing the business of the various pharma products, okay. Yeah. So if someone wants to get into this role, how he has to prepare, where he has to approach, and how he can start his journey. देखो, सबसे पहले तो मैं एक ही बोलना चाहूँगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, वो पहले आप आइडेंटिफाई करो। उसके बाद में अगर आपको फार्मा इंडस्ट्री में आना है, स्पेशली इन मार्केटिंग, नॉट आई एम टेलिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग में आना है तो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, आप ग्रेजुएट चाहिए। Okay. बीएससी ग्रेजुएट को भी अपॉर्चुनिटी मिलता है फार्मा इंडस्ट्री में। मैक्स टू मैक्स डी फार्मेसी भी किया है आपने, उसके बाद में एम फार्म हो गया, बी फार्म, ये लोग भी हमारे तरफ आ रहे। क्यों आ रहे इतनी इतनी बड़ी डिग्री लेके? क्योंकि मार्केट में मार्केटिंग के लिए जितना पैकेज मिलता है जल्द से जल्द, वो प्रोडक्शन में आपको इतना नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, इसलिए आता। क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन चाहिए, उसके बाद आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल मीन्स आपको इंग्लिश की फ्लुएंसी अच्छी चाहिए, आपके पास स्किल चाहिए प्रोडक्ट बेचने के लिए, ये सारी बातें चाहिए। और बहुत सी कंपनियां अभी कैंपस इंटरव्यू भी लेती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, एबॉट हो गई है, लुपिन हो गया है, एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल हो गया है, उसके बाद में मैनकाइंड जैसी कंपनी है, काफी बड़ी corporate हाँ से। बहुत बड़ा कॉर्पोरेट से, ये कैंपस इंटरव्यू भी लेता है। तो कैंपस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो वेल एंड गुड, और पेपर्स में भी बहुत बार ऐड भी आता है, तो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है न्यू कमर्स के लिए। लेकिन आपको आपका माइंडसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेल्स में कुछ प्रॉज और कॉन्स भी है। मुझे लगता है हाँ। जॉब पोर्टल्स भी एक मार्ग रहेगा जहाँ से दिस पीपल कैन गेट इनटू दिस या असाइनमेंट। जॉब पोर्टल भी है इसमें, कोई जॉब पोर्टल्स मींस आई एम रेफरिंग टू naukri.com हो गया, यस Shine यस होता है, यस, then Times आपका अगर Job। CV naukri.com के अपडेटेड होगा तो वहाँ से भी आपको कॉल आते हैं उस through। ओके सो अभी परफेक्ट। देखो न्यू कमर्स के लिए मैक्सिमम मैं 2-4 कंपनी बताता हूँ, जैसे हो गया FDC, फूड एंड ड्रग कंट्रोल, ये न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटी देता है। एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल इज अ बिग नेम, ये भी न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटी देता है। लुपिन भी देता है। मतलब देखो, बहुत इंडस्ट्री में क्या होता है, न्यू कमर को जल्दी अपॉर्चुनिटी मिलता ही नहीं, उनको एक्सपीरियंस कैंडिडेट चाहिए। लेकिन मार्केटिंग में अगर आपको आएंगे तो आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बहुत से बार रेफरेंस से भी काम हो जाता है। अगर आपका कोई दोस्त मार्केटिंग में काम कर रहा है तो उसके रेफरेंस से भी आपका काम बन जाता है यहाँ पे, ये और बहुत मुझे लगता बड़ा है एडवांटेज जैसे है। मुझे और भी मैं कहना चाहूँगा, जैसे हम ना मार्केट में रहते हैं, राइट है, तो बहुत सारे फार्मास्यूटिकल के शॉप्स रहते हैं, राइट है, आप वहाँ पे भी जाके इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनी से वहाँ पे अप्रोच होती है, राइट है, Yes, yes. जिनसे आप बात कर दिस सकते इज हो। ऑल्सो गुड। या good मतलब thing. अभी हमने छत्रपति संभाजी नगर में देखा है, आई थिंक आपका फार्मा का एक प्रॉपर विंग ही है ना, जहाँ पे पूरे स्टॉकिस्ट बैठते हैं। देखो, ये आपको कहाँ से वैकेंसी मिल ये तो- सकता है कि ये तो पूरे होलसेलर करके रहता है। फार्मा इंडस्ट्री के बहुत सारे होलसेलर रहते हैं, उनके पास अलग अलग कंपनी, वहाँ पे भी आप गए तो वहाँ पे भी आप अप्रोच हो सकते हो, वहाँ पे भी बहुत सारे वैकेंसी लगाए वाले रहते हैं। और उसके बाद में अभी हरीश सर ने बताया कि फार्मा एक मतलब फार्मेसी के पास भी आपको मिल जाएगा, उनको भी अगर पूछेंगे, क्योंकि मार्केटिंग पीपल उनको मिलते ही है, हमारे हम खुद मिलते ही है। जॉब प्रोफाइल में हमारा वो मेन वर्क वही है। Perfect. Thanks for this. And the next part, you know what, how much he can grow, okay, and what are opportunities. Prior to get into that, one more thing is the skill. You spoke about that require this particular skill, okay. Now, I'm just a very young guy, or if I'm coming from some other industry, not from the sales, okay, but from other industry, okay. So how I can able to cope with it, because I don't have any skill, Yes. okay. So how exactly to then take it ahead? देखो, सबसे पहले तो आप देखो, आपका ग्रेजुएशन मैंने बताया, क्वालिफिकेशन चाहिए। और स्किल में देखो, आपको जो है ना
कम्युनिकेशन स्किल में आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी अच्छी चाहिए, आपको बायोलॉजी का नॉलेज चाहिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो गया, इसका एक बेसिक नॉलेज तो भी चाहिए आपको। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कम्युनिकेशन स्किल में तो सबसे मेजर बात आपका बॉडी लैंग्वेज, उसके बाद में ग्रूमिंग्स एनिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मेन कस्टमर है वो है डॉक्टर, और आपको डॉक्टर के पास जाना है तो आपको ये इस पे डॉक्टर ये बहुत बड़ा होशियार आदमी है। देखो सबसे पहले तो इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, और आपको उसके साथ डील करना है तो आपको भी आपका जो लेवल है उस लेवल पे आपको बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, बिल्ड होना पड़ेगा। आपको तो ग्रूमिंग्स रखना है। उसके बाद में आपका कम्युनिकेशन फ्लुएंसी, आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज अच्छा चला। कम्युनिकेशन में बड़ा चीज होता है मालूम हाँ। है, क्योंकि देखो प्रसाद जी, हमने यहाँ पे देखा है ना, देयर हियर आर मेजर डॉक्टर, दे स्पीक इनटू देयर नेटिव लैंग्वेज। ओके, जैसे अभी हम महाराष्ट्र की बात करें तो लोग यूजुअली स्पीक्स मराठी, राइट है, तो बहुत सारे डॉक्टर भी अच्छी खासी मराठी बात कर लेते Yes. हैं, बिकॉज बेस्ट जैसे पेशेंट आते वैसे बात करनी पड़ती, तो दे नोज लोकल लैंग्वेज, राइट। तो हिंदी में भी चलता है। अब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन क्या, इंग्लिश वाला कम्युनिकेशन, या एटलीस्ट आपको जो आता है वो भी सही से आना देखो, चाहिए? आपको जो प्रोडक्ट मिला है वो तो भी आपको इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए। उसके प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज चाहिए। अगर आपको आपके प्रोडक्ट में नॉलेज ही नहीं रहेगा तो सामने वाला भी आपको कुछ बात नहीं कर पाएगा। आप सिर्फ थैंक यू करके निकल जाएंगे। लोकल लैंग्वेज में बात होता है, नो इशू, बट आपको जो आपका प्रोडक्ट है वो पूरा इंग्लिश फ्लुएंसी में आपको सामने वाले को बताना चाहिए, क्योंकि आपका मैसेज जब क्लियर जाएगा तभी आपको आउटपुट मिलेंगे यहाँ पे। Right. So if you meet the local doctor who handle the general, who is performing his duties into the GP, right? So general physicians. तो वो बंदा मतलब usually he will speak in the local language. हाँ. But when there is the senior person, then that time senior person means someone MD or something specialized doctor. So there you have to be speak into their language. वैसा भी कह सकते हैं आप, लेकिन देखो अभी इसमें कैसा रहता है, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग में अलग अलग डिवीजन होता है। कार्डियक का डिवीजन अलग होता है, उसके बाद में जनरल फिजिशियन का डिवीजन अलग होता है, उसके बाद में ऑर्थो का डिवीजन होता है। मतलब ये स्पेशलिटी वाइज दिया है, लेकिन आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रख के चले, क्योंकि आपको जो कम्युनिकेशन है इंग्लिश में ही अच्छा रहेगा तो सबसे बेटर है, क्योंकि इंग्लिश में ही आप, क्योंकि सामने वाला सबसे इंटेलिजेंट पर्सन बैठा है आपके सामने, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और आप किस तरह से प्रेजेंट करते वो भी सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे, सामने वाले को जितना रिस्पेक्ट देंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आपको पेशेंस बहुत रखना है इसमें, हमारे फील्ड में कभी आना है तो आपको, क्योंकि वेटिंग बहुत करना पड़ता है डॉक्टर के चेम्बर में, 1-1 घंटा, कभी 2-2 घंटा, 3-3 घंटा। राइट, हाँ, मतलब कि काम आपको सब, आपका दिमाग जो शांति से करके बाद में आपका जब टाइम आएगा, जब आप जाओगे बात करोगे तब। देखो हम ना वो पॉइंट पे आएंगे प्रसाद जी, ओके, बट प्रायर टू दैट, ओके, जस्ट टू नो अंडरस्टैंड वन मोर थिंग इज, लेट्स से टुडे आई एम जॉइनिंग एज अ सेल्स एसोसिएट और द सेल्स एग्जीक्यूटिव और बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव और डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर, ओके, so what are growth opportunities I have, okay, in terms of my career growth? Along with that, what are the field opens within the same pharma industry for me to grow in? देखिए, सबसे पहले तो आप अगर न्यू कमर ज्वाइन होते हैं, और सबसे बड़ा मैं फ्रेशर हूँ, मेरे को सैलरी कितना मिलेगा? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ अभी, वही पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखो वो तो सबसे मेन पार्ट है। हाँ, क्योंकि कोई भी आता है तो यहाँ पे पैसा बनाने के लिए आएगा, और पैसा है तो तभी तो अपना काम चलेगा भाई। देखो न्यू कमर के लिए देखो कंपनी टू कंपनी वेरिएबल है। अगर आपको अच्छी कंपनी मिलती, मल्टीनेशनल मिलते हैं, तो आपको स्टार्टिंग में 4 लाख का भी पैकेज मिल जाएंगे, आप 5 लाख का भी मिल सकता है। और इंडियन फार्मास्यूटिकली देखेंगे कॉमनली आपको अभी जो करंटली जो पैकेज मिल रहा है 3 लाख से लेके 4 लाख तक स्टार्टिंग मिल रहा है अभी अच्छे कंपनियों में। और उसके बाद में पैकेज देने के बाद आपको अलाउंसेस भी मिलते हैं अगर आप हेडक्वार्टर टाउन में काम करते हैं। अभी सपोज आपने दिया है इंटरव्यू और छत्रपति संभाजीनगर के लिए आपने इंटरव्यू दिया है, लेट्स सी टियर 2 टियर 3 या इसमें देखो, हाँ ये टियर 3 सिटी है, तो उसमें आपको देखो सपोज पैकेज दिया है आपको XYZ कंपनी ने 3 लाख का, उसके साथ में आपको बाइक होना बहुत जरूरी है। विदाउट बाइक आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक एरिया दिया जाता है। मतलब अभी छत्रपति संभाजीनगर है, आपको सिर्फ छत्रपति संभाजीनगर के डॉक्टर तो करना है, उसके बाद में आपको जाना है कन्नड़, सिल्लोड़, ये नियर बाय इंटीरियर है, 50 to 60 किलोमीटर आप जाके वापस आता है। और कुछ स्पेशलिटी डिवीजन होता है, वहाँ पे आपको रुकना भी पड़ता है 1 या 2 दिन, तो वहाँ पे आपको जाने आने के लिए आपको फेयर भी मिलता है। कंपनी टू कंपनी वेरिएबल है, 2 रुपीज़ किलोमीटर, 3 रुपीज़
किलोमीटर ऐसा मिलता So है can we say if आपको, और suppose- अलाउंस भी मिलता है अलग से, राइट? एक स्टेशन का अलाउंस मिलेगा अलग, हेडक्वार्टर का। अभी देखो मेडिकल रेप है आप, तो अभी करंटली बहुत सी कंपनियां 250 रुपीज़ से लेके 300 तक अलाउंस है बहुत सारी कंपनियों को। और किलोमीटर जो मिलता है, आप अगर सिटी में काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ पेट्रोल का अलाउंस मिलेगा, किलोमीटर का अलाउंस नहीं मिलेगा। आप अगर एक स्टेशन जाते हो तो आपको किलोमीटर भी मिलेगा और एक स्टेशन का अलाउंस भी मिलेगा। मतलब 300 350 एक अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं कि इन जनरल मिलता है बहुत से कंपनी में 300 350 रुपये एक स्टेशन अलाउंस मिलता This है is for the आने first जाने के लिए। entry level job, right? हाँ, फर्स्ट एंट्री लेवल जॉब के लिए, और लेवल टू लेवल अलग रहते हैं अलाउंसेस वगैरह। तो ये एक बेनिफिट है। और आप अगर टारगेट करते मंथ बाय मंथ, इसमें और एक बेनिफिट देखो, आप मंथ बाय मंथ टारगेट करते तो आपको बहुत सारी कंपनियां 1% भी इंसेंटिव देती है अलग से। और आप कंटिन्यूसली 3 मंथ का एक क्वार्टर रहता है वो करते तो आपको उसमें इंसेंटिव भी अलग मिलता है, 1% हो गया। उसके बाद में प्रोडक्ट वाइज मिलता है आपको अलग अलग। मतलब ह्यूज अपॉर्चुनिटी कमाने के लिए, अगर आपका माइंड सेट अच्छा होगा और आपको मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पे देखो मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा मार्केटिंग में। ये एक ऑफिस में बैठ के आप नहीं कर सकते जॉब, आपको घूमना पड़ेगा, आपको कस्टमर का हैंडल करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क प्रेशर भी रहेगा, टारगेट का भी प्रेशर रहेगा, ये सब बातें आपको करनी पड़ेंगी। लेकिन पैसा ये हो अच्छे गया से एंट्री कमाते लेवल का। तो इसके ऊपर पोजीशंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या देखो मतलब आप हायरार्की यूजुअली कैसी देखो होती है? ये जो है पूरा परफॉर्मेंस पे बेस पे प्रसाद है। जी, प्रसाद जी, एक अगर तो- आप मेडिकल प्रसाद रेट जी, पे प्रसाद जी, अच्छा, प्रसाद, sorry to बोलिए। interrupt you. Two things, okay? एक तो how he will be grow within the organization. Yes, yes, okay? मैं वही अभी That वही too in point the पे sales. Along with that, can he jump with the internal job posting or any other opportunity? So he can go to some other department Yes, based on what interest he got into the. Yes. देखो इसमें अभी आपको पहला तो मिलेगा जो आप मेडिकल रेप या सेल्स ऑफिसर, बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, इस तरह की पोस्ट रही थी स्टार्टिंग में। आप अगर पूरे साल अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपके बॉस लोग आपको आगे जाने के लिए भी रेफर करते हैं। इसके ऊपर का लेवल है एरिया मैनेजर का। बहुत सी कंपनी में एरिया मैनेजर है, एरिया सेल्स मैनेजर है, एरिया बिजनेस मैनेजर है। एरिया बिजनेस मैनेजर के बाद आप रीजनल सेल्स मैनेजर में भी जा सकते हैं। उसके बाद में आप जोनल सेल्स मैनेजर बन सकते हैं। जोनल सेल्स मैनेजर बनने के बाद में नेशनल हेड बन सकते हैं। नेशनल हेड होने के बाद में जनरल मैनेजर बन सकते हैं और सीईओ तक जा सकते हैं। मतलब देखो आप शुरुआत कर रहे हैं मेडिकल रेप से, लेकिन जा सकते का, ये सब आपका डिपेंड है आपके परफॉर्मेंस पे, आप पे काम पे। तो देखो अपॉर्चुनिटी बहुत है आगे बढ़ने के लिए। और आपको अगर पीएमटी में भी जाना है, बहुत सारी कंपनी सेल्स वालों PMT क्या को होता भी, है? हाँ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके है, जो मतलब पूरा मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हैंडल करता है। तो वो वहाँ पे भी क्या आपको होता है जॉब PMT, अपॉर्चुनिटी क्या मिलता होता है है। एग्जैक्टली, और क्या होता है इसके बारे में? देखो ये एक हो गया हमारा अभी एक sales पीएमटी marketing. क्या होता है, देखो मार्केटिंग का ही पार्ट है पीएमटी है पोस्ट। उसमें जो है उनको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट कंपनी देती है, उसके लिए रिगार्डिंग क्या स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसा वो प्रोडक्ट रन करना है, सब उनके पास रहता है। तो वो सब स्ट्रैटेजी बना के फील्ड के लोगों को मीटिंग में बता के सब कुछ ये करते हैं, वो उनका काम रहता है। तो मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप टिप से लेके टॉप तक जा सकते हैं। एक सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, टिप से लेके salary टॉप बढ़ेगा। तक। और सैलरी तो बढ़ना ही बढ़ना है भाई। और देखो और एक बात मैं बताना भूल गया, अगर आप साल में पूरा टारगेट करते हैं, बहुत सी कंपनी आपको फॉरेन टूर भी बेचती है भाई, क्या बात है। इंसेंटिव में आप। और इंक्रीमेंट तो लगना ही लगना है। फॉरेन टूर भी बेचती है, उसके बाद में रीजनल टूर भी बेचती है, विद फैमिली भेजेंगे आपको। ओके, हाँ, ये भी देखो, ये आपको बहुत सी जगह नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। ओके। सो देखो मैंने 3 लाख पे मेरा सैलरी है, तो मतलब 25,000 के आजू बाजू 3 से 4 में के मेरे 3 to 4 लाख के से मिलता है। तो अराउंड 25 to 27,000 दैट विल बी माई टेक होम। ओके, दैट आई एम टेकिंग टू माई होम। ओके, along with that you mentioned the traveling expense and other expenses. So together I'm making this entire amount as around 6 to 7,000. This one is for the allowances plus my fixed take home, that is it goes around 31,000. Okay, and if I able to crack the monthly targets, so I can also make the incentive up to the 1%. Okay, depend Yeah, what the depends. organization Very has well. decided for the incentive Yes. parameters. Okay, so maybe I can go easily to 35,000. Okay, depend how we perform. Yeah, Okay, yeah. and what exactly the cities is. But there are the lot many organization as mentioned by the Prasad ji, so you can get into the multiple opportunities, get into the organization and perform. Okay, so as I will be grow within the organization, so next level में जाता हूँ, मैं एरिया मैनेजर बनता हूँ, तो मेरा सैलरी चेंज हो जाएगा, राइट है। और एरिया मैनेजर से जोनल मैनेजर बनता हूँ, तो एरिया जो मैनेजर रहता है, ओके,
एक मेडिकल रेप हो गया, तो ये बंदा एक पर्टिकुलर सिटी हैंडल करेगा, राइट है? या पर्टिकुलर सिटी और उसके एक्स टाउन्स, अगर छत्रपति संभाजीनगर में तालुका जाते हैं सिल्लोड, पैठण, और उसके बाद में हो गया आपका वैजापुर, तो ये बहुत सारी कंपनी कवर करने को लगाती है लड़कों को। ओके ओके। हाँ, और कुछ कुछ कंपनी ऐसी कुछ स्पेशलिटी सिर्फ औरंगाबाद में भी काम करवाती है। इट्स डिपेंड ऑन, मतलब कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से कंपनी पे डिपेंड है वो सब जो है। और देखो इसमें आप जो सैलरी आएंगे उसमें आपको पीएफ भी कटेगा, उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्स भी कटेगा, ये भी ध्यान में रखो आप, वो भी डिडक्शन होगा आपको। ओके, जैसे मैं एरिया मैनेजर पे जाता हूँ, ओके, तो मेरे को कितना टाइम लग सकता है? ओके, देखो मैंने मिनिमम है ना, कितना साल मैंने हाँ, ग्राउंड पे काम आप करना अगर है? अच्छे से परफॉर्म करेंगे 2 से 3 साल पकड़ के चलो, 2 साल तो लगेगा ही लगेगा आपको, क्योंकि आपको पूरे स्किल्स अपने में डेवलप करने के लिए, एक्सपीरियंस पूरा लेने के लिए 2 साल तो लगेगा, 2 से 3 साल ओके लगने ही वाला है उसके बाद में। ओके ओके ओके, तो मतलब 2-3 साल में मेरा ये हो जाएगा, देन आई कैन जंप टू द एरिया सेल्स मैनेजर अगेन। आई नीड टू इन्वेस्ट द सेम टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल एंड आई कैन अप्लाई फॉर द अदर रोल आल्सो, या देन द अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाएगी। या ओके, और मार्केट से भी आपको बहुत सारे सैलरी अपॉर्चुनिटी सीटीसी का आता है। कितना अंतर आता है? मतलब पकड़ के चलो ये लेवल पे एंड वो लेवल पे, कोई बंदा है देखो इंटरनल 4.5 प्रमोशन, लाख से चालू करता हाँ, है, अगर इंटरनल प्रमोशन आपको मिलता है तो उसमें पकड़ के चलो और 1 से 1.5 लाख आपको बढ़ा के मिलता है, एक ऑन एन एवरेज बता रहा मैं, ज़्यादा भी मिलता है बाकी कंपनियों में। इफ वी आर गोइंग, इफ आई एम सर्चिंग अपॉर्चुनिटी आउटसाइड ऑफ माय हाँ, कंपनी। आउटसाइड मिलेगा तो फिर आपको 2 से 2.5 लाख भी बढ़ा के दे सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कंपनी में, देखो Usually और 30% इंटरव्यू आप कैसा देते हैं उसके हिसाब से। Prasad, हाँ, there is a one clause, okay? I Okay. don't know मतलब why this company keeping it, but they are keeping it, okay? When they want to give the candidate up to 30% they says it, okay? और some companies are also see मतलब हम negotiate भी कर सकते 30% से ज़्यादा, okay? तो अकॉर्डिंगली जो आपका करंट स्टेटस इसके ऊपर आप मांग के नेक्स्ट रोल पे जा सकते हैं, या उनका बजट क्या है पोजीशन के लिए वो भी देखना हाँ, पड़ेगा। वो भी आपको देखो, सबसे पहले आप अगर आउटसाइड यहाँ पे एक बार एक्सपीरियंस ले, XYZ कंपनी में आपने एक्सपीरियंस लिया है, अगर आपको बाहर से ऑफर आता है हाँ, हाँ, तो मार्केट के हिसाब से आपको मैक्स 20 to 24% ही मिलेगा, देखो हाँ, एक हाँ। बता के चलता हूँ। हाँ, और वैसे भी जैसे हमने डिस्कस किया, बंदा कभी चालू करता है सीटीसी 3.5 के ऊपर या 3.3 लाख के ऊपर, ओके, तो विद इन द 3 ईयर तो उसका तीन टाइम तो सैलरी इंक्रीमेंट वैसे ही हो जाता है, अप्राइजल होना है, सो दैट सैलरी विल बी एडेड इनटू अ फिक्स सीटीसी, ओके। तो उसका सीटीसी जो उसने 3 लाख पे चालू करा था, जस्ट एन एग्जांपल, तो 3 साल में कम से कम वो बंदा नहीं बोला तो 4 लाख के आजू बाजू में चल जाता है, 4-4.25 लाख के आजू बाजू में, और उसके ऊपर फिर से वो हाइक ये लेता देखो है। हरीश जी, ये सब डिपेंड्स रहता है परफॉर्मेंस पे। हाँ, तो परफॉर्मेंस होगा तो ही आपका पैकेज बढ़ेगा, ये बात ध्यान में रख के चल, Mandatory है। मैंडेटरी, Right, क्योंकि right. विदाउट परफॉर्मेंस तो आपको आपको कोई सैलरी कोई नहीं देगा। देगा, क्योंकि देखो पूरे साल कभी आपका परफॉर्मेंस रहेगा, बहुत से बार नहीं भी रहता है, चैलेंजेस आते हैं। बराबर। हाँ, क्योंकि कम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत सारे कंपनी का प्रोडक्ट सेम ही रहता है, सिर्फ ब्रांड नेम चेंज रहता है, तो बहुत कंपटीशन है मार्केट में, लेकिन आप परफॉर्म करेंगे तो मतलब जाएगा अराउंड जाएगा। एक मैं ब्रैकेट की बात करूं तो एरिया सेल्स मैनेजर 6 to 8 लाख भी हो सकता है, 6 to 9 लाख यस भी हो सकता यस है। यस यस, And when it इट्स comes डिपेंड to ऑन कंपनी। it, हाँ, देखो बहुत सारी कंपनियां 5 लाख भी देती है स्टार्टिंग में, छोटी कंपनी रही तो कभी कभी कोई 4 से भी शुरुआत करती है। इट्स डिपेंड ऑन कंपनी, प्रोफाइल कैसा है और आपका एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि कंपनी को जैसा बंदा चाहिए आप उसमें फिट बैठते हो तो आपको नेगोशिएट भी कर सकते हो उसमें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और दोनों सेल्समैन पे जाएगा तो फिर उसका पूरा कवरेज भी पूरा स्टेट यस, का देखो रहेगा। एरिया बढ़ेगा आपका। अगर देखो आप मेडिकल रेप है या बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है तो आपको एक स्पेसिफिक टाउन रहेगा उसके आजू बाजू के, लेकिन आपको एरिया मैनेजर बना देते तो आपके अंडर में फिर 4 to 5 पीपल रहेंगे ही रहेंगे, और जैसे आप उसके बाद में रीजनल सेल्स मैनेजर बनते तो आपके अंडर और टीम बढ़ा रहता है, 15 से 16 मेडिकल रेप रहेंगे, 3 से 4 एरिया मैनेजर रहेंगे, और आप जैसे जोनल मैनेजर बनते हैं उसके अंडर में 2 से 3 RSM रहेंगे, 4 से 5 एरिया मैनेजर रहेंगे, और टीम भी बड़ा रहेगा नीचे का। वैसे वैसे हायरार्की बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका एरिया भी बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी टीम भी और करेंगे। मैं और एक सैलरी पॉइंट को टच करने, जैसे मैं प्रोडक्ट में चला गया या ब्रांड मैनेजर टीम में चला गया, ओके, वहाँ का सीटीसी कैसे रहता है? मतलब इसके पैरेलल नहीं, रहता उसका है? सिटी से मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो थोड़ा डिपार्टमेंट अलग है, तो अब तक तो नहीं, उसके बारे में हाँ, मैं नहीं बट बता मतलब सकता। पैरेलल या उससे अच्छा ही होगा? हाँ, उससे थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, पैरेलल ही रहेगा। राइट है, राइट है। हाँ, ओके, चलो परफेक्ट है। सो we missed that point, okay? Let's see, we discuss that कि जो बंदा फार्मा की इस फील्ड में आना चाहता है उसका एजुकेशन चाहिए, BSc चाहिए,
बी फॉर्म एम फॉर्म आपने मेंशन किया है, बीएससी डी फार्म है। डी फॉर्म भी आपने हाँ, बताया। और कभी कभी कुछ कंपनी बीए ग्रेजुएट को भी देती, लेकिन अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो ही उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। मतलब बीए आ गया तो बीकॉम भी हाँ, आएगा। हाँ ले सकते हैं, लेकिन वो क्या है, आपको It उसका depends. कम्युनिकेशन चाहिए, साइंस का थोड़ा नॉलेज चाहिए, आपको बायोलॉजी का थोड़ा नॉलेज चाहिए, जॉब के बारे में एंड आपको। आई थिंक यू नो आई बिलीव दैट ओके कि आप ना ये सीख सकते हो। सी लेट्स nowadays you have such a big platform, okay, simply go to the internet, just go through all the anatomy, how exactly this entire anatomy yeah. works, okay, and while on interview if organization is open to have someone from the BA background, BCom background, you go and apply for that. तो हो सकता है आप वहाँ का जर्नी चालू हो कंपनी जाए टू आपका, कंपनी वो वेरी नहीं है। करता है। हाँ, कंपनी टू कंपनी मोस्ट गिवन प्रायोरिटी फॉर डी फार्मेसी कैंडिडेट, बीएससी कैंडिडेट एंड बी फार्म एम फार्म Yeah, very true. कैंडिडेट। Because आपको ट्रेन नहीं करना है, बच्चों को Yeah. सब पता है। क्योंकि उनको नॉलेज रहता है मेडिसिन के बारे में, डी फार्म से हुआ तो ड्रग के बारे में उनको नॉलेज रहता है, उस साइंस के बारे में नॉलेज रहता है, बायोलॉजी हो गया, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में उनको नॉलेज रहता है। ये चलो यार, अच्छा पॉइंट याद आ गया मुझे। सो व्हाई दिस नॉलेज इज रिक्वायर्ड, ओके, क्यों मतलब एनाटॉमी का नॉलेज होना चाहिए, व्हाई यू हैव। देखो आप वहाँ पे जाकर, प्रायोरिटी उनको क्यों? हाँ देखो, ड्रग बेचना है तो, लेकिन वो ड्रग कहाँ कहाँ पे कौन से बॉडी एरिया में काम करने वाला है, तो इसलिए तो आपको एनाटॉमी पता चाहिए, मतलब फिजियोलॉजी पता मोड ऑफ एक्शंस क्या हाँ है, क्या है, ये सब नॉलेज चाहिए। क्योंकि आप जा रहे सामने बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है आपका जो क्लाइंट है, आपको डॉक्टर को और मिलना वो है। डॉक्टर आपको पूछेंगे ही आपको सवाल कि Right. भाई ये ड्रग किस में चलता है, इसका डोसेज क्या है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये सुबह ले सकता हूँ शाम, ये सब कॉमन क्वेश्चन तो रहते ही है। लेकिन कंपनी आपको ट्रेनिंग देंगे, इसलिए इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि बहुत डिफिकल्टी जाती है। अगर आप न्यू कमर हो, आप जब भी ज्वाइन, कंपनी आपको ट्रेनिंग देती है, बहुत सारी कंपनियां ट्रेनिंग देती है, ऑन फील्ड भी आपके मैनेजर्स लोग आपको ट्रेनिंग देंगे कैसा है कैसा नहीं, Then you बट have to आपको start. अपडेट रहना पड़ता है हर बार आपके प्रोडक्ट के बारे में, तभी आप जाके कुछ वो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं आपका। राइट है। तो चलो मोस्टली वी डिस्कस ऑन दी हाउ न्यू कमर कैन एंटर इनटू इट, ओके, Yes, yes. एंड हाउ कैन he can start to how he can excel into his profile, okay. Right. Now do you have any opinion on the whatever the employee you might be hiring the candidates, okay, या so what all things you observed while conducting the interviews, okay. देखो, हम इंटरव्यू में सबसे पहले देखते हैं उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है कि नहीं, सबसे मेन बात वही है, और उसकी काम करने की तैयारी। क्योंकि देखो यहाँ पे वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, सुबह 9 बजे निकलना पड़ता है, आप रात में कितने बजे आएंगे वो फिक्स नहीं रहता, कभी कभी जल्दी भी वर्किंग ख़त्म हो जाता है 5-6 बजे, ठीक है, बीच में टाइम मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको काम में ही देना पड़ता है वो, है कि नहीं समझ, मतलब वर्किंग आवर फिक्स नहीं है यहाँ पे। तो जिनको स्ट्रगल करके, मतलब जो स्ट्रगल मतलब बेसिकली आप ये कहना है कि भाई मेहनत करने वाले लोग हम लेते हैं, जिनको बहुत ज़रूरी काम की। क्योंकि क्या, बहुत सारे लोग आते हैं 4-5 महीने करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं, उनको बराबर। हाँ, ये वही जॉब कैसा चैलेंजिंग जॉब है, देखो इजी जॉब नहीं है ये, आपको फील्ड पे निकलना पड़ता है, ट्रैवलिंग करना है आपको, रोज 25 से 30 किलोमीटर का ट्रैवलिंग रहने वाला हेडक्वार्टर में भी रहे, और एक स्टेशन को जाते हैं, सपोज सिल्लोड गए 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर जाना आना, आप बाइक से भी जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, लेकिन वो तो है, मतलब फिजिकल वर्क बहुत है यहाँ पे, और उसके बाद में थोड़ा बहुत एडमिन वर्क भी रहेगा आपके लिए, तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। राइट परफेक्ट है। एंड जैसे अभी देखो मेहनत करेंगे तो पैसा बहुत है इधर, लेकिन आप अनडाउटेड बिकॉज देखो हाँ। 3-3.5 लाख या 4 लाख का आपको सीटीसी मिल रहा है, दैट टू ऑन ग्रेजुएशन। देखो ये डिपेंड्स है, 3-3.5 लाख का, कुछ कंपनी 2 लाख भी देगी आपको, अच्छा। कंपनी पे तो डिपेंड company रहता वही है, हाँ, करेगा। सब कंपनी पे वेरी है। मैं बोल रहा हूँ देखो कुछ कंपनियां देती 3 लाख भी स्टार्टिंग, लेकिन बहुत सारी कंपनी आपको 2 लाख भी देगी, ठीक है, हाँ, ये भी पकड़ के चलो। क्योंकि That is up to you, मतलब आपको कौन सी profile आपका क्या इंटरव्यू apply करना कैसा होता है, कंपनी कैसी उनका है, budget उसके क्या ऊपर है? क्या है, सब उसके हिसाब से रहेगा आपको। बट द थिंग इज दैट आप 2 से भी चालू कर सकते हो, थोड़ा प्रॉपर रिसर्च करके। Yes. इफ यू अप्लाई फॉर द पोजीशन यू कैन आल्सो जंप ऑन द Yes. सी द गुड थिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री इज दैट कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, देखो सेम प्रोफाइल के लिए 2 लाख का सीटीसी भी मिलेगा, ओके, बट यू नो यू प्रॉपरली रिसर्च द थिंग, ओके, you properly understood, try to analyze what all organizations are hiring, और आप वहाँ पे अप्लाई करते हो तो आपका सीटीसी उसके हिसाब से 3 लाख मिल सकता है या 4 लाख मिल सकता है, मतलब कहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको ओन करनी, दैट इज अप टू यू। डेफिनेटली चलो आई थिंक फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू वी कवर्ड
Prasad ji. Okay, so we'll jump on the second part. Okay, thank you. Okay, thank you.